This is the 17th edition of Country Show. I'm director of performance like at Country Show. Yogesh Mudras, welcome you all here. Let me introduce the panelists who have joined us for this inauguration. We have Shri Honorable Minister Hirala Nagarji, the Minister of State for Energy Department, Government of Rajasthan, who has joined us here. Sitting next to him on the left side is we have Mr. Sunil Bansal, who is the president of the Rajasthan Solar Association. Sitting next to him is Mr. Shamsu Jaiswal, who is head of India Research Bloomberg. And we have Mr. Peter Hall, who is the president of IBR region for Informa, which does some of the leading energy shows in the world. So just to talk about this show, this, as I said, is the 17th edition of the show. It's the largest ever REI and the battery show that we're putting up together. Battery was launched just last year, because as you know, with renewable, there is always a challenge of intermittency, and the battery and storage segment fits very well with that. And the battery show has Dinesh from US and Germany that we as Informa do these shows. And so total combined across this expo, there we have about 700 plus exhibitors in REI and over 250 exhibitors in battery show. It's the Mela of, I would say, the Kumbh Mela of the renewable and energy sector. Everybody who's in the sector makes it a point to attend this, and there's so many attractions in the show that are here. We have the back-to-back multi-track conferences. We have the investors forum. We have the innovation zone. We have the CEO and the CTO roundtables across both these verticals. So lots of action on the floor. So anybody who's connected to the sector, and we expect about 50,000 trade attendees to come to the show across. We have pavilions from Germany. We have the biogas pavilion. So lots happening. What I will do is after I speak, I will pass on the mic to each one of them to speak. They can say about the show and how they are associated with this vertical, and then probably open the question floor for questions. So first I'll start with the minister. खुद भी आपको बताऊं कि राजस्थान में भी बैटरी स्टोरेज के टेंडर हम करने वाले हैं सोलर के साथ साथ, और इसका आगे बढ़ करके और जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूं कि थर्मल जो एक 25 साल की जिसकी अवधि होती है और अब जो समय चल रहा है, परिवर्तन का चल रहा है, ये बैटरी स्टोरेज ऐसा थर्मल का जो सब्स्टिट्यूट है जिससे सोलर से चार्ज होके और वो रात में भी हम बिजली बैटरी स्टोरेज के माध्यम से देने वाले हैं। अब मैं आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होगी तो हमें सोलर जो थर्मल की आवश्यकता है वो दिनों दिन हमारी कम होती हुई हम बैटरी स्टोरेज और सोलर पर जाकर के विंड के माध्यम से एक नया ग्रीन एनर्जी का जो हमारे यहाँ उत्पादन अधिक से अधिक बढ़े, उसकी ओर पूरा देश अग्रसित हो रहा है और सभी प्रदेश इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आज इस शो में जो भी हमारे जितने भी यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आए हैं और इसमें आने वाले जितने भी हमारे 40-50 हजार भागीदार होंगे, उन सबको एक ही छत के नीचे एक दूसरे से समझने का, मिलने का, अलग अलग प्रोडक्ट का जो अवसर मिलेगा और उसके माध्यम से आने वाले समय में जो हमारी डिमांड है कि अगले 5 साल में हम 500 गीगावाट तक के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ सोलर के लगे, और उसके लिए एक छत के नीचे जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका बहुत ही लाभ आने वाले समय में हमारे उपभोक्ताओं को मिलने वाला। देखिए, जितना भी हमारा सीमावर्ती इलाका है वो रेगिस्तानी है, रेगिस्तान में तो लगा और वो कई किलोमीटरों में है। उसका एग्जैक्ट आप फिगर में नहीं बता सकता अभी। कितना उत्पादन, कितना उसका उत्पादन करीबन टोटल सोलर का उत्पादन राजस्थान का 21,000 मेगावाट का है। 21,000 में मैक्सिमम डेजर्ट में लगा हुआ, हुआ मैक्सिमम डेजर्ट में जो सोलर में हम नंबर 1 है, और वो वहाँ हम सोलर का जो संभावना है राजस्थान में, वो वहाँ पर हमारा जो दूसरे प्रदेश में या दूसरी जगह जहाँ रेगिस्तान का इलाका अगर छोड़ दें तो हमारे पास 15% रेडिएशन वो ज्यादा मिलता है। अगर हम 1 मेगावाट का कोई प्लांट लगाते हैं वहाँ 17,000 यूनिट हमको मिलता है, 17 लाख यूनिट। अगर हम वही प्लांट दूसरी जगह लगाते हैं, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के भाग को छोड़ दें, तो वहाँ 15,000, 15,500, 16 लाख यूनिट मिलेगा। फर्क है, तो कोई भी इन्वेस्टर
जो भी लगाना चाहता है वो राजस्थान आना चाहता है, क्योंकि वहाँ उसको एक्स्ट्रा यूनिट मिलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के इस 17वें आयोजन में आज देश में जो सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है आने वाले समय की, और उसकी पूर्ति के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा स्रोत भी है। और इसके साथ साथ जो बैटरी स्टोरेज का भी आज यहाँ इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसका दूसरा ये शो है, एक्सपो है। और आने वाले समय में आज की आवश्यकता है कि हमें, जब हम दिन में सोलर से बिजली आज हमारे पास लगभग काफी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, तो उसके साथ साथ हमें जब पीक आवर्स आता है तो पीक आवर्स में भी हमारे को, जब वो 4 घंटे ऐसे होते हैं जो शाम के, उस समय हमारी जो डिमांड होती है वो काफी बढ़ती है। और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि बैटरी स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ आए। उसके लिए इस यहाँ जो इंटरनेशनल स्तर पर कई इसमें ऐसे भागीदार जो आज यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी के साथ जो आ रहे हैं, उसमें आने वाले समय में बैटरी स्टोरेज का बहुत चलन बढ़ने वाला है। साथ अब हम वहाँ उन्हीं सोलर के साथ साथ बैटरी स्टोरेज के भी प्लांट लेकर के आ रहे हैं, ताकि वहीं से वो दिन में सोलर से उत्पादन हो जाए, रात में वही चार्ज बैटरी होकर के, और उसी को जो ग्रिड है, एसटीयू है, चाहे वो सीटीओ हो, उसके माध्यम से वहीं से जब दिन में सोलर से ट्रांसमिशन होगा, रात को ट्रांसमिशन की जरूरत है, उस समय हमें वो बैटरी से ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो हमारी ट्रांसमिशन की उपयोगिता रहेगी कि वहीं हम ट्रांसमिशन भी, वो बैटरी स्टोरेज भी लगा रहे हैं। सारी इवेंट और इतनी बड़ी इवेंट होती है, तो जैसा आपने बोला ये मेला है हमारे लिए कुंभ है। ये नई दिशा देगा हमारे इस बार की आरईआई डेफिनेटली हमें एक नई दिशा देगा। और राजस्थान हमेशा से लीडर रहा है और हम इस लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन करेंगे। और आगे आने वाले में बहुत नोवेल्टीज राजस्थान में आपको देखने मिलेगी अंडर द ऑनरेबल मिनिस्टर हिरालाल नागर जी और हमारे एसीएस सर हैं आलोक जी। हमारी पूरी गवर्नमेंट इस सारे एक्सपो में जो भी इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, एडवांटेज राजस्थान का एक सेशन भी हमने रखा है। मेरा उनको सबको इन्विटेशन है, जो भी इन्वेस्टर्स आज राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए आना चाहता है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे सरकारी ऑफिसर से बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और इसके अलावा अगर मीडिया की कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि आज हम चाहते हैं राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, मैन्युफैक्चरिंग हो, कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो। हम सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज दी जाए कि राजस्थान में सोलर कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाए। इसके लिए कोई भी क्वेरी हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू रिप्लाई। थैंक यू। और उसके साथ साथ देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं है जहां उसको जितनी जरूरत है उतनी जमीन मिल सके। राजस्थान के पास वो संभावना है। हमारे पास वहाँ जो जमीन अनुपयोगी, जिसमें कोई पैदावार नहीं होती है, कृषि के कारण नहीं आती थी, उस जमीन पे सोलर लगा करके वहाँ के किसानों को भी भाग्य बदल रहा है। वहाँ का किसान भी आज उस जमीन को अगर लीज पे दे करके सोलर वाले को, उसको भी एक फिक्स्ड इनकम उससे जनरेट हो रही है, तो राजस्थान के किसानों को भी लाभ हो रहा है। गवर्नमेंट भी वहाँ लीज पे आने वाले सोलर प्लांट के जो इन्वेस्टर हैं उनको जमीनें दे करके और वहाँ अधिक से अधिक प्लांट लगाना चाहते हैं, हमने पॉलिसी बनाई है। तो राजस्थान में अपार संभावनाएं सोलर की है, विंड की है। And you mentioned that this event has been going on for the past 17 years and it actually takes more than 17 years because we have participated since the first edition. And I'm really grateful to you for giving us the opportunity. So at Global NEF, we are the sites and data providers for those industries. And there have been several about how this event is business events, but it should also mention the software because that's what I also seen in the last 17 years. We were getting new promising technologies, expanding now with earlier it was also mentioned that the organization is going to be a lot of development on renewables as well as storage side. What happens is with purely renewables, you can only get a certain level of renewables penetration. But once you add storage to it, you can actually start pushing those limits upwards.
So from, let's say, if you were going to get, if you were going to get ceiling with 50% of your application by just having a variety of resources, so just add storage and that ceiling covers in itself. You add a few more different sources and you can go as high as 50%, 90% of power requirements coming from these resources. So that is what we are seeing that earlier and I wish we could. एक चीज मैं और ऐड करना चाहूँगा कि डॉक्टर जी ने बोला था कि पाकिस्तान के बगैर 500 की बात है सही बात है, क्योंकि अगर आप देखें आज की डेट में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है लैंड को लेकर के और अगर राजस्थान में सेक्टर एरिया है और लैंड आसानी से लोगों को प्राप्त हो जाता है तो उनसे डेवलपमेंट का कार्य बड़ी तेजी से होता है। आज अगर आपको 500 गीगावाट करना है तो हर साल आपको एक नया लक्ष्य पार करते रहना है और वो लैंड डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगता है। बाकी स्टेट्स कर सकते हैं बट राजस्थान हैज द अपॉर्चुनिटी टू टेक द लीड अर्ली ऑन एंड लीड द कंट्री। Hello. Yeah, I'm Peter Hall. I'm the president of Informa Markets for India, Middle East, Africa, and Turkey. Informa is a global leading the largest exhibition business in the world. We're headquartered in London and listed on the London Stock Exchange, part of the FTSE 100 group of companies. We're in the business of bringing markets together. This is a great celebration of the renewable energy market, and we're very much interested in seeing how we can further develop this event. We have other renewable energies and power distribution events around the world, and we're going to see how we can bring some of the features from those events here to India, as we have with battery. Battery was a new event that we brought here 2 years ago, and it's complementary to the main theme of the event. And we're always looking to see what we can do more to make this industry thrive and to further develop the show for the future. Thank you. उसके बाद आप आम आदमी में जो देखेंगे वो देखते बनता है। हर आदमी आ चाहता है, हर रेजिडेंस ओनर चाहता है कि मेरे घर पे सोलर लगे। अब हमें समझाना नहीं पड़ता किसी को व्हाट इज द सोलर, प्राइस पे डिस्कशन होता है। मैं उसमें देख रहा था कि शायद महिला के नाम यदि वो कनेक्शन है तो उसको सब्सिडी मिलती है। नहीं इस तरह की शर्तें उसमें लगी हुई नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोई थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कोई भी हो जाए, सब्सिडी सबको मिलती है। 78,000 इन्फोरामा ने ऑलरेडी इस पे लीड ले लिया है। सेपरेट बैटरी शो रखा है और इंडिया में बैटरी की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी स्टार्ट है। आप देखेंगे घर में हमारा एक ऐसा इन्वर्टर आएगा, उसके साथ छोटा सा बैटरी का सेट के साथ लगा होगा, जो उसकी नीड को, रात की नीड को भी वही सोलर का सिस्टम पूरा करेगा। वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है और आप देखेंगे इंडिया में बहुत जल्दी इस तरह के प्रोडक्ट आपको लाइवली दिखेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा दिखता है वो प्रोडक्ट, अभी भी आपको बोल, हम उसको पावर बोल बोलते हैं, कि एक दीवार पे छोटी सी बोल लगेगी, छोटा सा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आरओ लगा हुआ है, जस्ट लाइक बस। तो ये नेक्स्ट है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 1-2 साल में घर घर में। मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया होगी, मेक इन इंडिया काफी ऑलरेडी स्टार्ट लग चुकी है बैटरी। सर ये बताएं कि अभी सिर्फ 3 स्टेट हैं, राजस्थान, तमिलनाडु और उसके बाद हमारा गुजरात। 3 स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है और जिसमें राजस्थान फर्स्ट पे है। लेकिन अभी भी बहुत से स्टेट, सारे स्टेट मान लो, तो अभी भी वो इसको एग्री नहीं करते इसको, क्योंकि लैंड एक्विजिशन पॉलिसी और बहुत सी चीजें भी कर रही है। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीटिंग करती है, सिर्फ 7 स्टेट ही उस पर फर्स्ट पे आए थे प्रायोरिटी पर, और किसी भी स्टेट ने इस पर प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन में लैंड खराब होती है, सोलर एनर्जी लगती है तो उस पर लैंड की स्पेस भी बहुत कम होता है, लैंड खराब होती है तो किसान जमीन देने के हक में भी नहीं हो रहे हैं। तो इस पॉलिसी को जो 2030 तक का प्लान बनाया हुआ है तो उस पर कैसे आप सक्सेस हो सकते हैं? ऐसा है डेफिनेटली, तो रिन्यूएबल जो है ना, अब केवल एक स्टेट तक नहीं था, ग्रिड स्केल के प्रोजेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोजेक्ट और एक रूफ 3 कैटेगराइज कर सकते हैं। ग्रिड स्केल के प्रोजेक्ट डेफिनेटली 4-5 स्टेट में लग पाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे कंट्री में लगेगा, जैसे कुसुम स्कीम, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड में बहुत सारे स्टेट्स अपनी स्कीम्स लेके आ रहे हैं। जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर की गाइडेंस पे राजस्थान में कुसुम सबसे ज्यादा सक्सेस है, हम 5000 मेगावाट ऑलरेडी अलोकेट कर चुके हैं। मतलब राजस्थान के किसान की किस्मत बदलने वाला है कुसुम,
और इसी तरह से हर महाराष्ट्र में भी लगभग 10 से 12 हजार मेगावाट सिस्टम लग रहा है, कर्नाटका में लग रहा है, एमपी में लग रहा है, गुजरात में बहुत बड़े स्केल पे। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर है ये पूरे कंट्री में लगेगा। पंजाब का टेंडर भी आया होगा, हरियाणा में भी लगेगा, ठीक है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, बाकी लगेगा सब जगह। ट्रांसमिशन की बड़ी सिस्टम खराब है। ट्रांसमिशन क्योंकि स्टोरेज लिमिटेड स्टोरेज होता है, ट्रांसमिशन सेंट्रल के ट्रांसमिशन का चैलेंज ज्यादा है, स्टेट के ट्रांसमिशन अभी उतना बड़ा चैलेंज नहीं। अभी ठीक है, अभी आएगा 1-2 साल सेचुरेशन आने में, उसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग ऑलरेडी हो रही है, उसके ऊपर कैसे काम किया जाए। बड़े लेवल पर हम डेवलप कर रहे हैं हमारे आने वाले इन्वेस्टर को, और उसके माध्यम से सोलर वहां लगाने के लिए माहौल बना रहे हैं। इससे हमारा जो राजस्थान में जो समिट हो रहा है इसमें भी हम सबको आमंत्रित करते हैं, वहाँ आए, अपना प्रपोजल दें। अगर अपनी कोई पॉलिसी, अपने कोई प्रपोजल लेकर के और वो आते हैं और उसके लिए कोई स्पेशल कोई हमने पैकेज देना है तो हम बात करेंगे, वो लेकर के आए, उसके साथ डिस्कस होगा, टेबल पे बैठ के वो क्या चाहते हैं, उसकी क्या समस्या है, वो सब वो करके अब जब उसका ठीक हो जाएगा तो उसका रेगुलर कर आने वाले इन्वेस्टर हमारा स्वागत है वहाँ। ऐसे कई एमओयू हमारे हो चुके हैं, आगे भी होने वाले हैं। तो ये 10-11 सर, दर्शकों को परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं योगेश मुद्रस, मैनेजर डायरेक्टर इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया हूँ और ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो जो 17वां साल है, 17वां प्रयास है, और ये इसके साथ बैटरी शो, ऐसे 2 शोज लगे हुए हैं। ये बैटरी शो जो 2 साल सेकंड एडिशन है, जो यहाँ पे आप इंडिया एक्सपो मार्ट में जो देख रहे हैं। सर कितने प्रकार की बैटरी मैन्युफैक्चर यहाँ पर आए हैं, अब बैटरी का स्वरूप किस बदलता चला जा रहा है, पहले दूसरी बैटरी आती है, लिथियम बैटरी आ रही है, किस तरीके से लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक्चुअली जो शो कर रहे हैं हम लोग, ये सबसे बड़ा अभी तक का शो किया है। इसमें 850 से ज्यादा एग्जिबिटर्स रिन्यूएबल एनर्जी में है और 250 से ज्यादा बैटरी शो में है। बैटरी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई। आज देखेंगे रिन्यूएबल में क्या हो रहा है कि पावर तो जनरेट हो रहा है, लेकिन वो आपको रात को उसका यूज नहीं है, बिकॉज वो तो क्या, तो बैटरी इज समथिंग विच उसके साथ मिलजुल के एक अच्छा सिनर्जी है ये शो का, बिकॉज जो अब पावर जनरेट करते हो उसको स्टोर करो और रात को उसका यूटिलाइजेशन हो जाए। तो बैटरी की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, अभी वो टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे डिस्प्ले बहुत कम आ रही है और वो सोलर और इसके साथ बहुत एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे B2B के लिए भी यहाँ पर होगा, और कितना हो सकता है कि कितना ट्रांसमिशन हो यहाँ पर, और तो बिजनेस क्या प्रारूप रहेगा बिजनेस का। इससे बिजनेस का फिगर देना पड़, ये B2B शो ही है, यहाँ पे कंज्यूमर्स है नॉट डे, सो B2B, सो इसका I would say it must be in excess of 20-30,000 crores would be the impact, जो impact हो रहा है। यहाँ पे बायो एनर्जी भी है, उनके भी MOU साइन हो रहे हैं, सो बहुत सारे आई थिंक एक अलग ही लेवल का शो है। जो आप जैसे मैंने बोला, एक कुंभ मेला है जहाँ पे सारे एनर्जी के स्टेक होल्डर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है, सारे यहाँ पे आते हैं। और एक एग्जीबिशन के साथ इधर एक नॉलेज फ्रंट भी है जहाँ पे सारे कॉन्फ्रेंसेस, टेक्निकल सेमिनार्स हो रहे हैं, इन्वेस्टर फॉरम्स हो रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं, इन्वेस्टर्स आके स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है ये इसमें। एक इसीलिए एक मेला की तरह है जिसमें जो भी एनर्जी से रिलेटेड है, जिसको जो कुछ चाहिए एनर्जी का रिलेटेड नॉलेज चाहिए, बिजनेस में आना है, बिजनेस में है उनको और बढ़ाना है, तो आई थिंक ये एक शो है जहाँ से पूरे भारत से क्या साउथ एशिया से अलग अलग पार्ट्स ऑफ एशिया वर्ल्ड से भी लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जर्मन डेलीगेशन है, जापान, कोरिया, हर जगह से डेलीगेशन आई हुई है। सर, क्या भारत इस स्थिति में आ चुका है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो एनर्जी के परंपरागत स्रोत हैं उनकी जगह ले पाएगा? यदि अभी नहीं है तो क्या चैलेंजेस है और कितने टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी टेक ओवर कर लेगी एनर्जी के परंपरागत स्रोत? एट द मोमेंट भारत तीसरे नंबर पे है रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्ल्ड में ऑलरेडी, एंड आई थिंक जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो टारगेट दिया उस हिसाब से तो आई थिंक मे बी आई थिंक नेक्स्ट 10 से 15 साल में हम लोग नंबर 2 पे भी आ सकते हैं। पहले हमारा बहुत डिपेंडेंस था चाइना पे, लेकिन वो बहुत कम हो गया है बिकॉज लॉट ऑफ मेक इन इंडिया की वजह से। आज मेरा ये शो जो आरिया था वो पहले 30-35% इंटरनेशनल चाइनीज आते थे यहाँ पे, आज चाइना का लेस देन 5% भी नहीं होगा, और वो भी जो है चाइनीज प्लेयर्स जो इंडिया में अभी उनका बिजनेस है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते वैसे। तो अभी ये बहुत इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है जो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह ग्रो करे और वो एक्सपोर्ट भी करे यहाँ से, इसीलिए तो नेशनल डेलीगेशंस आ रही है शो में। सो इंडिया इज ग्रोइंग इन दिस फील्ड एंड आई थिंक इट्स in next 10 to 15 years time India will be seen as one of the important market leaders in this space. With the focus state
फोकस राजस्थान है इस बार, बिकॉज राजस्थान के मंत्री पावर मिनिस्टर आए थे यहाँ पे। राजस्थान में एक बहुत अच्छा स्टेट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है रिन्यूएबल सेक्टर की, एंड वेरी हैप्पी दैट ये वाइब्रेंट राजस्थान, ये जो उनका इनिशिएटिव हमारे एरिया में हो रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर